جب آپ کو عقل نہیں بھیجا نہیں، اس کو سولوشن نہیں بتا سکتے تو پرابلم کیوں اس کا کریٹ گمراہ کر رہا ہے. تو دوراہا جب آتا ہے نا آدمی کو تو ٹیکل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہیں آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں جائے. اب بیوی بچے نہیں اسلم بھائی فری لانس ہے، لیکن ٹائم ہے نا ان کے پاس. اب وہ شراب بھی جا کے پی سکتے ہیں یا تبلیغی جماعت کے استعمال میں جا سکتے ہیں. دو رستے ہیں. یہاں آگے بیٹھ گئے، کبھی تبلیغ 3 دن کے ان کے ساتھ چلے گئے، 10 دن کے چلے گئے، چلے جاتے ہیں. رستہ ڈھونڈے نا، مسجد میں آ کے سو جاتے ہیں. کہیں اور بھی سو سکتے تھے، کہیں اور. تو کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو جب 2 رستے ملتے ہیں. اب میرے کو بہت سارے دوست جو ایسے ہی ہیں، لیکن شراب پی رہے ہیں، لڑکیوں کے چکر میں، پروگرام سے دور ہے. یہ انہوں نے رستہ چنا. اللہ تعالیٰ بولیں گے تیرے کے پاس رستہ تھا. ابھی ہمارے تو 10 دن کے اجتماع ہوتے نہیں، تو 10 دن کے لیے فری ہے تو کیا کریں گے؟ چلے گئے، بولے میں اجتماع میں چلا گیا. تو میں کبھی اس چیز کو منع نہیں کرتا کہ چلے گئے تم ٹھیک ہے. وہ جماعت کا کام میرے کو صحیح نہیں لگتا کہ بھائی وہ 1400 سال سے یا 1000 سال سے 2000 سال سے وہی کر رہے ہوئے. لیکن یہ ہے کہ بھائی آپشن ایک آدمی کو آپ جب نہیں دو گے، اس کے پاس آپشن نہیں ہے. ایک صلاح بھی ہے، ابھی بھی میرے کو ملتا ہے کہ میرے کو دعائیں سیکھنے کا ہے، تو میں اس کو پہلے بولوں گا کہ جا 3 دن کے اس پہ چلے جائیں. بھائی نہ تو جماعت اسلامی کہیں اس کا 3 دن کا کورس کر دے، تو وہاں بھیج دو، آفس میں بھیج دو، اس کو 3 دن اس کو سکھا دو. ہاں 3 دن دور ہو جائے. ہاں وہ کم سے کم شراب اور مٹکے سے تو دور ہو جائے گا نا. ان لوگوں کو اس کو جو رستہ ملا اس میں وہ ادعو سبیل ربی کا کر رہا ہے، بے حکمت کے ساتھ نہیں کر رہا ہے یا علم حاصل نہیں کر رہا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن دیکھیے آپ اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کے پاس 2 رستے جب بھی آتے ہیں آپ کون سا چنتے ہیں. آدمی کے لیے مشکل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے آپ جواب نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ کو ابھی ہوتا کیا ہے، الحمدللہ جماعت اسلامی کے پروگرام میں آدمی ایک بار ڈوز لے کے جاتا ہے نا تو بہت دنوں تک وہ ڈوز اس کا ساتھ دیتا ہے. کیونکہ وہ جو انجیکشن ہوتا ہے وہ علم کا انجیکشن ہوتا ہے، قرآن کا انجیکشن ہوتا ہے. وہ لے کے اس کا اچھا خاصا ٹائم نکل جاتا ہے. وہ نکالنا چاہے تو وہ نہیں کہا ہے تو وہ تبلیغی جماعت بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتی. ایسے لوگ بھی تبلیغی جماعت میں جا کے چلے کاٹ کے آئے اور ان کے سیدھے کام بھی کر رہے اور لگے ہوئے اسی کے. ایسے بھی لوگ ہیں. آدمی خود سے نہیں کرنا چاہے کوئی نہیں سدھار سکتا. علامہ اقبال کا ایک مشہور واقعہ ہے. ایک مولانا جو ہے وہ گئے اپنے بیٹے کو چھوڑ کے کہیں کام سے چلے گئے 2 مہینے کے. تو بیٹے کو علامہ اقبال سے ملا، بولے میرے فرزند ہیں، ان کو میں نے بولا روز آپ کے پاس آ کے بیٹھیں گے 2-3 منٹ اور جو عالم لوگ آتے ہیں آپ کی باتیں سنیں گے، علم حاصل کریں گے، تو آپ ذرا دھیان دیں. بولے ٹھیک ہے. بچہ ذرا آؤٹ لائن تھا، بچے کو نصیحت کرے، ان کو ملا کے گئے، بولتے گئے، بیوی کو بولے خیال رکھنا. چلے گئے. وہ 2 مہینے بعد آئے تو بچے میں کوئی چینج ہی نہیں، ویسا کہ ویسا. پھر علامہ سے پوچھے تو بولے ہاں 2 بار آیا تھا. بولے 2 مہینے میں 2-4 بار ہی آیا. بیوی کو جا کے بھڑ گئے. بیوی بولی میں نے تو بولتی تھی جاؤ، میرے کو کیا معلوم، میں کہ وہاں جا کے چیک کروں کیا گیا کہ نہیں. تو بیٹے کو سب سوچ کہنے لگے. علامہ کے پاس لے گئے. بولے علامہ دیکھو آیا میں 3 مہینے 2 مہینے سے باہر تھا. تو علامہ نے مذاق میں ایک اچھا دیا. ارے بولے بھائی اس کی عمر کتنی ہے؟ بولے 22 سال. تو 22 سال میں بولے جس کو اللہ نہیں سدھار سکا اس کو 2 مہینے میں اقبال کیا سدھارے. چلے گئے. یعنی وہ بول رہے تھے کہ تو نے اس کو 22 سال میں کیا کیا اس کے اوپر، یا اس نے خود اپنے آپ کے لیے کیا کیا. میرے پاس 2 مہینے کے لیے چھوڑ کے چلا گیا، اس سے کیا ہونے والا. وہ خود ہی نہیں کرنا چاہتا ہے. تو جب تک آپ کے دل میں یہ چنگاری نہیں ہوئی اللہ اس کو شعلہ نہیں بنائے. اور اگر آپ نے چنگاری کی حفاظت نہیں کری تو اللہ اس کو راکھ میں تبدیل کر کے سلا دے گا چنگاری. تو وہ جو ایمان کی چنگاری ہے، جو شوق ہے، اس کو نور بنانے کا کام آپ کا ہے اپنا. کوئی اس میں کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا سوائے آپ کو. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک چیز اور بتاؤ بھائی نا آپ کب تم آپ کی بک میں سلیما اٹھتی تم بھی آپ کب تم کا مطلب کیا ہے؟ ہاں تکلیف. ہاں تکلیف اس کا اصل مطلب ہے تکلیف دینا، سزا دینا، درد دکھ دینا. یہاں پر جو الفاظ آئے اس کا مطلب ہے بدلہ. تو اللہ تعالیٰ جنگ کا ماحول تھا نا، اس میں لڑائی ہوتی تھی. تو کبھی کبھی یہ آخری عرصہ تھا یہ مکے کا، اس میں کوئی ظلم کرتا تھا. اور پھر اب ایسا دور آنے والا تھا مدینے میں جس میں ہو سکتا ہے کہ طاقت ملے تو آدمی زیادتی کرے. جیسے کہ مسئلہ کیا گیا اللہ کے رسول کے چچا کا. مرنے کے بعد مسئلہ کس کو بولتے ہیں؟ گلا کاٹ دیے، کان وان کاٹ دیے، پیٹ کاٹ کر اس میں سے کلیجہ نکال کے ہندا نے چبائی تھی نہیں. یہ سب اس کو وہ غصے میں لاشوں کی بے حرمتی کرتے تھے. غصے میں کون
कुफर। तो मुसलमान लोगों को भी कि हम भी जैसा उन्होंने करे। अल्लाह ताला ने यहाँ पे बोला कि जितना उन्होंने बदला किया है, सज़ा दी है तुमको, तुम भी उतनी सज़ा उनको दे सकते हो, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। माँ उकीब तुम भी उतनी सज़ा दो जितनी उन्होंने। उन्होंने तो कत्ल करे, तुम भी कत्ल करो। उन्होंने मसला किया, आप क्या करें? लाशों के कलीजे चबाए, उसके लिए हुक्म आया। वलइन सबर तुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन, और अगर तुम सबर करो तो ये सबर करने वालों के लिए बेहतर है। एक इसमें बारीक पॉइंट वो आता है, अगर हम बदला लेंगे, हाँ, लेकिन अगर वो बदले में ज़रा सा भी ज़्यादा हो गया तो वहाँ तो उसका जो नहीं पड़े। तो ये आदमी को लिहाज रखना ज़रूरी है कि आप जब बदला लें तो उतना ही बदला लें जितना जुल्म आप पे किया गया। और अपने सहाबा को अल्लाह के रसूल ने जो है इसके बारे में हदीस से अगर आप पढ़ेंगे ये आयत के अंदर में, तो एक हदीस मिलती है जिसमें एक सहाबी थे जो अपने गुलाम को जो है वो मार रहे थे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि क्यों मार रहे? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, इसने ऐसी फला गलती की और ये गलत काम किया। तो कहा कि उसने अगर गलत काम किया है और तूने उसको मारा है, तो जितना उसने गलत काम किया है उतना ही तूने मारा है तो ठीक है, लेकिन अगर उसने गलत काम जितना किया उससे ज़्यादा तूने मार लिया तो क़यामत पे हिसाब देना होगा। तो पीछे ने बोले जा मैंने आज़ाद किया। ये इंस्टिल किया। कभी कभी ऐसा मामला आ जाता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये मैं जो ले रहा हूँ बदला बराबर है या ज़्यादा तो नहीं है। तो आप ये देखिए कि या तो बराबर है या उससे कम ले रहे हो थोड़ा, ये तो फिर आप छूट जाएंगे। जैसे अगर आपने माफ़ कर दिया, देखिए कुरान में इसकी जो हदीस आई है वो सब्र करें आप, तो ये जो सब्र करेगा उसके लिए बेहतर है। ज़्यादती हो ही सकती है, हो सकती है नहीं कभी कभी आदमी जो है कम पे भी, जैसा मजमे में 2 झापड़ मार दिया उसने, आप गिर गए, फिर आप वही मजमे में वो या रोड पे मार दिया, अब वो बदला लेने की बारी है, उसको पकड़ लिया, बोले आप मारा था ना मारो। अब उसने 1 तमाचा मार के छोड़ दिया तो कम लिया ना, उसने 2 मारा था या उसने 4 घूंसे मारा था, आपने 1 तमाचा मार के छोड़ दिया, कम लिया ना। लेकिन आपने 4 घूंसे मारे, अब आपका घूंसा अगर कम था तो ठीक है, ज़्यादा पड़ा, आपका 1 दांत निकला उसकी 32 ही बाहर आ गई, तो अब आपने ज़्यादा मारा, अब आपको हिसाब देना है। तो इसलिए सहाबा का इतने एहसास हो गए थे कि या तो वो छोड़ देते थे, सब्र करते थे। एक जगह पर कुरान में भी आया है कि जिसने तुम पर ज़्यादती की है तुम भी उस पर ज़्यादती करो। वो गांधी जी का मामला नहीं कि एक गाल मारा तो दूसरा दे दो, फिर दूसरे पे भी मार देना। तो फिर वो संजय दत्त होता है, तो गांधी जी ने बताया नहीं थे कि दूसरे पे भी मार दिया तो क्या करते, फिर वो धुलाई करता है उसको। तो वो एक गाल पे मारे तो दूसरा तो नहीं है, तुम भी उसको मारो, लेकिन अगर तुम माफ़ कर दो तो अल्लाह की खुशनुदी हासिल होगी, अल्लाह खुश हो जाएगा तुमसे। अब ये काम क्या, अल्लाह को खुश करने का काम बहुत मुश्किल है, तो इतने जल्दी तो आसानी से होता नहीं। तो किसी को माफ़ करना भी बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। किसी ने आपको तकलीफ़ दी, गाली दी, दुख दिया, उसको दिल से माफ़ कर देना या बदला नहीं लेना आसान नहीं है। हाँ, मौके के तलाश में रहता हो और फिर उससे डबल उसको पिना देता हो। मेरे को किया था ना, अभी समझ में आया, तो अल्लाह ताला बोलता कि डबल हुआ तो तेरे सर पे, उतना ही दिया तो कोई बात नहीं, इंसाफ, और माफ़ कर दिया तो मेरे ज़िम्मे है तेरा अजर। तो ये बात जो है ना अल्लाह ताला की, आप एक हदीस है इसके ज़िम्मन में मैं आपको बताऊँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी एक दूसरे के साथ में ज़्यादती करता है, हक मारा, तो वो जो जिसका हक मारा है वो उससे बदला लेने की कोशिश करता है, लेकिन होता नहीं है तो खामोश हो जाता है। क्या है, अल्लाह पे छोड़ के दोनों मर जाते हैं। तो हशर के दिन अल्लाह दोनों को जिंदा करता है। इसने तुझ पर ज़्यादती की थी, बोले हाँ, बोले अभी तू इसको, मैंने तो माफ़ कर दिया, अल्लाह कहे मेरा हिसाब क्लियर हो गया। अब उसको बोले ना जा इससे क्लियर करवा ले और जन्नत में चले जा, अगर इसने क्लियर नहीं किया तो जहन्नम में तेरे को मेरे फरिश्ते फेंक दे। अब उसके पास लेके चले जाते हैं। अच्छा, ये जो बंदा है इसका मामला कुछ अलग होगा, मतलब इसने उसके बाद नेकियां की, अल्लाह के इधर से तो क्लियर हो गया ना। देखिए ये बात उसमें आ गई, मतलब उसने उसके दूसरे काम अच्छे थे, ये सिवाय हक मारने। अब हक मारने का मामला ऐसा हो गया तो उसने बोला कि अल्लाह ताला मैं तो उसको माफ़ नहीं करूँगा। बोला तेरी मर्जी, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा तेरे ऊपर। तो उसने बोला फिर किस सूरत में माफ़ करेगा? तो बोला अल्लाह ताला
इसकी सब नेकियां मेरे को दे दो, कितने रोजे जो है ये सब कुछ किया था सब ले लो, मेरे गुनाह डाल दे इसके साथ, मैं डाल दे। बोला ठीक है, अभी बोला बस अभी ठीक है। अल्लाह बोला जब तू बच गया तू गया जब उसका तो क्लियर हो गया ना ऐसा, अब इसके ऊपर चढ़ गया तो पहले जन्नत ही था, कहना नहीं हो गया। लेकिन अब मामला क्या, अल्लाह के दरबार में अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। अब वो बंदा भी ऐसा नहीं था कि उसको अल्लाह की गैरत ने हमारा नहीं किया कि उसकी एक गलती के बदले में वो तो इंसाफ जो अल्लाह ने बोला था सारे गुनाह गए, जो गुनाह किया नहीं था वो सर पे आ गए, जो नेकियां मेहनत से की थी इखलास से की थी वो चले गए सब। तो अल्लाह ताला बोले खड़े रहे, उसको रोक लेगा, वो तो उम्मीद लगा रहा था जन्नत की, जहन्नम में चला गया, रुक जा, इसको बोलेगा तो चले जा जन्नत। देखिए प्रेशर नहीं किया, सब वहाँ पे अल्लाह ताला विलिंगली करा। तो हदीस में आता है जब वो जाने लगेगा जन्नत के दरवाजे पे तो रुक जाए, और राइट में देखेंगे हवा में 70 मील लंबा 70 मील चौड़ा एक मोती का महल है, एक ही मोती का महल है, और अंदर जगमगा रहा है, तो रोशनी किधर से आ रही मालूम नहीं, लाइट है लेकिन उसका सोर्स नहीं मालूम। जैसा एक ऐसा आँख पे दिख रही ना आपको, यहाँ देखेंगे तो लाइट है लेकिन किधर नहीं है, लेकिन कहाँ से आ रही मालूम है। और आप सोचिए कि लाइट है लेकिन दिख नहीं रही कहाँ से आई, कैसा सिस्टम है। आजकल लगाए अमेरिका में वो लोग वॉल के अंदर लगा देते हैं इनडायरेक्ट, मुंह पे नहीं आती लेकिन पूरे रूम में इससे ज़्यादा लाइट हो जाती, कई ट्यूबलाइट 25-40 ट्यूबलाइट एक रूम में लगा देते लेकिन अंदर। तो वैसे ही वो महल उसकी रोशनी है लेकिन दिख रही नहीं, ये खास बात सफ़ेद, और नूर है, और वो हवा में मोल रहते हैं, मतलब इट कैन पूरा ट्रैवल, वो पूरा महल लेके कहीं जाना है तो पूरा घर लेके जा सकता है मीलों लंबा। तो जब वो देखेगा और अंदर का उसको मालूम पड़ेगा क्या है, तो बोलेगा अल्लाह ताला ये किसका है। तो अल्लाह बोलेगा तेरा क्या ख्याल है किसका है। बोले या तो किसी नबी का है या किसी सिद्दीक का है, अबू बकर सिद्दीक जैसे लोग, या कोई शहीद का है, ये तीनों में से एक का होगा। तो अल्लाह बोलेगा नहीं ये उसका है जो इसका हक अदा करे। तो बंदा कहेगा इसका कौन हक अदा करता, नबी भी इसका हक अदा नहीं कर सकता, ये जो इनाम है नबी भी नहीं दे सकता है। बोला हाँ, अल्लाह बोलना तू दे सकता, बोलना मैं दे सकता हूँ। वो क्या है, बोलेगा तूने इतना सब चढ़ाया है ना गुनाह, उसको माफ़ कर दे बगैर अपने गुनाह चढ़ाए, तो ये तेरे को मिल जाए, तेरी मर्जी, चाहिए तूने तो जन्नत में चले जाए, ये नहीं मिलेगा, ये उसका है जो ये काम करे। तो बोलेगा अल्लाह दे दिया मैंने, सब जो था गुनाह उसको माफ़ कर दिया, सब क्लीन कर दिया उसको मैंने, मेरे को ये दे। अल्लाह बोलेगा तो इसमें घुस जा, चले जा। हाँ, जब जाने लगे तो ठहर जा, वो वहाँ रुका हुआ है, तेरा भाई है, उसका हाथ पकड़ के उसको भी लेके चले जा, बहुत बड़ी जगह है जन्नत की। तो जाएगा, बोलेगा चल उसका हाथ पकड़ उसको भी लेके चल। किसी पे फोर्स नहीं किया अल्लाह ने, ना किसी को वो किया, आदमी की साइकोलॉजी यूज़ किया, उसको इनाम बढ़ा दिया, उसने मार। तो इसलिए हम बोलते हैं अगर कभी आपसे गलती हो जाए, किसी का हक मारे तो उससे माफी दुनिया में मांगो। क़यामत में आपके साथ ही हो उसकी गारंटी नहीं है। उस आदमी के साथ हो गया था कि जो जन्नती था, उसके दूसरे अमाल उसको जन्नत में ले जा रहे थे, बस ये एक मामले की वजह से ख़राब हो गया था। हमारा ये मामला नहीं है, और इसके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला कभी ऐसा हो जाए तो हमारा मामला भी तू हमारी तरफ से किफ़ालत कर ले, हमारे जो गुनाह है उनकी तरफ से तू पर्दापोशी कर दे, किफ़ालत कर ले। लेकिन बेहतर ये है कि आपका जो मामला किसी का हक मारने का मामला है वो यही सेटल करो, वो रिस्की मामला है। आप बोलेंगे उसको अल्लाह ने माफ़ कर दिया, उसके लिए जुमला ये आया कि वो जन्नती था, अगर आप वहाँ पे जन्नती थे तो शायद अल्लाह आपके साथ ये करे, लेकिन आप बोल सकते हो कि मैं जन्नती हूँ नहीं। तो ये बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सब्र करना, सब्र जो है वो एक वो चीज़ है जो अल्लाह ने कहा है जो अपने बंदों के साथ में वो लाजिम व मज़ूम करार देता है। वस्बिर वमा सब्र का, अब यहाँ अल्लाह के रसूल को खास हुक्म दिया जा रहा है, वस्बिर वमा सब्र का, ऐ नबी तुम सब्र नहीं कर सकते मगर अल्लाह की तौफीक से। हम क्या बोलते हैं कि अल्लाह के नबी तो वो दर्जे पे, तो उनका जो सब्र था उसका कोई मुकाबला कर सकता है, उसको हुक्म दिया जा रहा है कि तुम नहीं कर सकता मेरी तौफीक के बगैर, तो तुम मैं हमारे लिए तो बदर जाए उला ये सबक है कि हम अल्लाह की तौफीक के बगैर सब्र नहीं कर सकते। अल्लाह से हमेशा हम तौफीक मांगने कि अल्लाह सब्र की तौफीक दे कि हम सब्र कर पाएँ, दुआ करें और कोशिश करें। अल्लाह कहता है कि हाँ 12 का टाइम है, हो गया 12, लेकिन शुरू करें थे 12:20 को हम लोग। 10-20 हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक।
वस्बिर वमा सब्र का, मैं तर्जुमा पढ़ लेता हूँ उसे। ये आज पूरी कंपनी ये आज जो है ना ये पूरी कर तो वमा, तुम सब्र नहीं कर सकते मगर अल्लाह के तौफीक के बगैर। वला तहज़न अलैहिम वला तुक़ी ज़ैतिम मिम्मा यमकुरून, और गम ना खाओ और इनकी फरेबियों से दिल तंग ना हो, यानी तुमको जो दुख होता है वो दुख को तुम हल्का करो, मत खाओ। और इनकी वजह से जो तुमको तकलीफ होती है, यानी ईमान नहीं ला रहे हैं, ईमान एक तो नहीं ला रहे हैं, तंज कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, मतलब 10 तरह की तकलीफें अल्लाह के रसूल। तो आदमी को भी आ रहे हैं ये। हाँ, तो अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अब तुम्हारे लिए वक्त अच्छा आएगा इंशाअल्लाह, तो उस पर मत करो। और या मिम्मा यमकुरून का लफ्ज़ है, तो यमकुरून किसके लिए आते हैं? चालों के लिए। मकरुल्लाह व मकर, इन्होंने मकर किया, यानी इन्होंने अल्लाह के साथ चली। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सब चालों से बेहतर चलने वाला है। हाँ, तो ये अल्लाह ताला कह रहा है कि ये चालें चलते हैं जो अलग अलग, उससे तुम्हारा दिल में तुमको दुख होता है तो दुख मत करो। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व, अल्लाह उन लोगों के साथ है जो तक़वा करते हैं, अल्लाह से डरते हैं। तो तुम्हारे साथ मैं हूँ, अगर तुम मुझसे डरते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए ये एक बात आप समझिए कि आप जिससे डरते हो ना उससे दूर भागते हैं। अरे बोले यार दोनों मुझसे उसके झगड़े मुँह लगे है ना, जहाँ भी डरते हो उससे मुँह भागते हो। अल्लाह के साथ में उल्टा रिवर्स है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उससे करीब हो जाए, क्योंकि जब आप अल्लाह से डरते हो तो अल्लाह का एक हुक्म मानते हो, और जब अल्लाह का एक हुक्म मानते हो तो अल्लाह खुश होकर आपके करीब आता है, और जब वो करीब आता है तो फिर आपको भी अपने करीब कर लेता है। तो ये एक ऐसा खौफ है जो आदमी को अल्लाह से जोड़ देता है। एक हदीस में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह बोला कि कुछ बात होती है, तो कहा कि ये एक ऐसी बात है मूसा कि माँ जो होती है ना उसका मामला होता है वो मेरा नबियों के साथ, कि मैं उनको गुस्सा करता हूँ, अगर उनको डांटता भी हूँ तो गुस्सा भी करता हूँ, वो मुझसे डरते भी हैं तो मुझसे करीब आ जाते हैं। तो माँ बच्चे का मामला कैसे, बच्चे को वहाँ झापड़ मारती है, डर जाता है ना तो घबरा जाता है, या गुस्सा करती है तो चले जाता है, अब कहाँ जाए? तो बच्चा क्या करता है रोने के बाद में, फिर जाके उसको पकड़ तो जाएगा किधर, तो रोता नहीं मम्मी जाके मम्मी को ही पकड़, फिर माँ उठा लेती है, को मना करी थे ना नहीं करना, आता अंदर ही होगा। हाँ वो उधर ही जाएगा तो उससे ज़्यादा प्यार करने वाला उसको मालूम है दुनिया में कौन है। खुदा का भी ये मामला है अपने नबियों के साथ, अल्लाह बोलता है अगर मैं कोई भी नबी को डांटता हूँ, सजा देता हूँ, वो जाएगा किधर, मेरे सिवा उसका है कौन, तो फिर भाग के वो मेरे पास ही आता है मुझसे, और मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। रास्ता की ना वो मेरे से भाग सकता है और ना वो दूर हो सकता है मुझसे, तो ये मामला। तो अल्लाह ताला छोड़ता नहीं बेगानों की, गुस्सा करता है, अगर थोड़ी सजा देता है, डांट देता है, बंदा उसकी तरफ जाता है तो प्यार से उसको, वो तो नबियों का मामला है। आम बंदा भी गुनाह करता है तो अल्लाह बोलता है उसको भी लिपटा लेता हूँ, तो मेरा बंदा मैंने पैदा किया, मेरी तकलीफ है, मैं क्यों उससे नाराज हूँ। तो अल्लाह कहता है लेकिन शर्त क्या है, तकवा, मुझसे डरो, वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, और तकवा के बाद में उन लोगों से भी अल्लाह ताला मोहब्बत करता है जो नेकोकार हो। मोहसिनीन का सही मतलब जो है वो एहसान करने वाला है, लेकिन कुरान में उसके लिए वो ज़्यादातर जब इस्तेमाल होता है तो वो नेकियों पर चलने वाला है, यानी तकवा भी है उनके दिल में और अमल भी उनका तकवे के जैसा है, तकवे के मिस्र जैसे उनका खौफ है उसके लिहाज से उनका काफी हो गया। 12 बज गए ना जी, आप परेशान हो गए उससे भी डिस्कस कर लेते हैं। ये मुंबई खा मुंबई है माया मस्जिद मुंबई चौक है,
دار القبرستان مسجد یہی لائف یہی ہے ممبئی سے گاڑی تو یہی ہے گاڑیاں ہم لوگ جی بھائی ادھر ہے مہینے میں ایک دفعہ لاسٹ سیٹرڈے یا اس بار تو میں نے بولا نہیں ملے گی بیٹھنا پڑتا تھوڑا دے دو